Good morning class. Welcome to your SST class. This video is for class 2nd and this is the second part of chapter 5, amenities in neighborhood. Okay, I have already taught first part in our previous video, and this part we will discuss about the exercises and additional questions. So let's start the exercises. The first exercise of your book is take the correct option. The first point is families living near our house are called our dash. The options are enemies, doctors and neighbors. The correct answer is neighbors. वो परिवार जो हमारे घर के पास में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Enemies? No. Doctors? No. Neighbors? Yes. The correct answer is neighbor. Second point is we live with our neighbors like dash. The options are teachers, friends and enemies. The correct answer is friends. हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए? Like a friend. Third point is our school is a building where we get our dash. School एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर हम क्या पाते हैं? The options are education, medicines or toys. The correct answer is education. Fourth point is the doctor examines the dash. The options are teachers, nurses and patients. डॉक्टर किसको एग्जामाइन करते हैं? किनका इलाज करते हैं? The correct answer is patient. Fifth point is we have to take a membership in the dash. हमें membership कहाँ पे मिलती है? कहाँ पर हम लेते हैं? The options are mall, library and school. The correct answer is library. We take a membership in the library. Now we move on next exercise. Exercise B, true false. The first point is 5 houses make a town or city. The answer is wrong. Answer is false. The second point, we should share each other's joys and sorrows. क्या हमें सुख दुख एक दूसरे से शेयर करने चाहिए? Yes, the answer is true. Third point, the teachers teach us good manners and good habits. Yes, of course, the answer is true. Fourth point, hospital is a place where we post our letters, postcard, etc. क्या हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने पोस्ट कार्ड और लेटर्स पोस्ट करते हैं? No, this answer is wrong. The answer is false. Fifth point, a library is a place where we can read many kinds of books. Yes, the answer is correct. Answer is true. Now we move on next exercise C, fill in the blanks. The first point, we live in a house with our dash. The options are enemy or family. हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं? Enemy यानी दुश्मन या family means परिवार. The answer is family. Second point, we should share each other's joys and dash. The options are sorrows and joys. The correct answer is sorrows यानी दुख. Third point, we celebrate festival dash. हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कैसे? अलोन, अकेले या टुगेदर, एक साथ? The correct answer is together, एक साथ. A school is a building where we get our dash. The options are food and education. हम स्कूल में एक साथ क्या पाते हैं? खाना या education? The correct answer is education. Fifth point is we should not dash with our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? Quarrel या talk? Of course, quarrel नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए, talk करना चाहिए, लेकिन quarrel means लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. Now we move on next exercise D, very short questions. The first question is where do we live with our family? हमें अपनी family के साथ कहाँ रहना चाहिए? We live in a house with our family. कहाँ पर? In a house. Next question, where do the children of the neighborhood play together every evening? जो बच्चे होते हैं वो शाम को कहाँ खेलने जाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ? In the children of the neighborhood play together in the park in the evening. पार्क में जाते हैं शाम को.
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड वी मेंटेन इन द स्कूल? हमें स्कूल में क्या मेंटेन करके रखना चाहिए? वी शुड मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द स्कूल, यानी शिष्टाचार और अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु एग्जामाइन द पेशेंट? पेशेंट को एग्जामाइन मीन्स उनका इलाज कौन करता है, उनको देखता कौन है? द आंसर इज द डॉक्टर एग्जामाइंस द पेशेंट एंड द नर्सेस लुक आफ्टर देम। और जो नर्सेज होती हैं वो उनको देखती हैं, डॉक्टर इलाज करता है और नर्सेज उनको बाद में देख रेख करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर डू द पीपल डिपॉजिट देयर मनी? जो लोग होते हैं वो अपना मनी कहाँ डिपॉजिट करते हैं? द आंसर इज अ बैंक। A bank is a place where the people deposit their money and valuable things to keep them safe. Okay? Now we move on next exercise. Answer the following questions. The first question is, what is neighborhood and who are neighbors? The answer is, many families also live in their houses near to us. These families make a neighborhood. कई ऐसी फैमिलियां हैं जो अपने ही घर में रहती हैं हमारे घर के आसपास, उन्हें हम पड़ोस कहते हैं। जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें पड़ोस कहते हैं। एंड हु आर नेबर्स? फैमिलीज लिविंग नियर अवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। वो परिवार जो हमारे घर के पास में रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी लिव विद अवर नेबर्स? हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए? वी शुड लिव विद अवर नेबर्स लाइक फ्रेंड्स, दोस्तों की तरह रहना चाहिए। एंड वी शुड हेल्प ईच अदर इन नीड, जब हमें ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। शेयर जॉयस एंड सॉरोज, दुख सुख बांटने चाहिए। मीट एंड ग्रीट देम ईच अदर वेरी ऑफन, और जब भी हो उनसे मिलना चाहिए, उन्हें ग्रीट करना चाहिए लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द पेशेंट गेट ट्रीटमेंट एंड हु लुक्स आफ्टर देम? जो पेशेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट कहाँ पाते हैं और उनकी देखरेख कौन करता है? A hospital is a medical institution where the patients are treated by the doctors and the nurses look after them. हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा और नर्सेज होती हैं जो उनकी देखभाल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ बैंक? द आंसर इज, बैंक प्रोवाइड अस अ सेफेस्ट प्लेस टू कीप आवर मनी। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक सेफ प्लेस है जहाँ पर हम अपना पैसा, वैल्यूएबल थिंग्स सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी गो टू द लाइब्रेरी? हमें लाइब्रेरी क्यों जाना चाहिए? वी शुड गो टू द लाइब्रेरी बिकॉज अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस where we can read, हम पढ़ सकते हैं many kinds of books like novels, stories and jeepneys, etc. Okay, now we move on next exercise, think and answer. The first question is, why should we maintain the discipline and decorum in the school? हमें स्कूल में अनुशासन और शिष्टाचार क्यों बनाकर रखना चाहिए? The answer is, we should maintain the discipline and decorum in the school because discipline brings stability and structure and it helps to promote good human behavior. The next question is, write the full form of ATM. The answer is A for automatic, T for teller and M for machine. Now we move on next exercise, more to do. In this exercise, the first question is, write the names of the following places located in your neighborhood. यहाँ पे उन जगहों के नाम लिखने हैं जो आपके पड़ोस में है। जैसे स्कूल आपके पड़ोस, घर के आस पड़ोस में जो भी स्कूल है आपको उसका नाम लिखना है। तो दिस एक्सरसाइज इज फॉर योर होमवर्क। एंड हॉस्पिटल, जो भी आपके घर के आसपास हॉस्पिटल है उसका आपको नाम लिखना है। बैंक, मार्केट, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। जो आपके घर के आसपास हो वो आपको फिल करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज गिवन अ पिक्चर ऑफ स्कूल, कलर द पिक्चर विद
ब्यूटीफुल कलर। और यहाँ पर आपको स्कूल की पिक्चर दी गई है, इसे आपको कलर करना है, ठीक। नाउ योर बुक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एमेनिटी। एमेनिटी मीन्स क्या होता है? द आंसर इज इजी, कंफर्ट, यानी सुविधा के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबर्स मीन। नेबर्स मीन्स हु लिव नियर बाय, यानी पड़ोस। जो नेबरहुड मीन्स हु लिव्स नियर बाय मीन्स पड़ोस, जो हमारे आस पड़ोस में रहता है। Where do we live with our family? Answer is in our house. Next question, what is neighborhood? Families live in their houses near to us are called neighbors. वो परिवार जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम neighborhood बोलते हैं। And who are neighbors? Families living near our house are called neighbors. जो families हमारे घर के पास में रह रहे होते हैं उन्हें हम neighbors यानी पड़ोसी बोलते हैं। What does grows into a colony? कॉलोनी में क्या बढ़ता है? The answer is neighborhood, यानी कॉलोनी में neighborhood यानी पड़ोस बढ़ते हैं। What makes a town or city? टाउन और सिटी कौन बनाता है? Colonies make a town or city. Next question, how do we live with our neighbors? हमें पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए? Like a friend. Next question, what should we share each other? हमें लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहिए? Joys and sorrows. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी मीट समवन? जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी ग्रीट देम लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, एटसेट्रा। वेयर डू द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड प्ले टुगेदर इन द इवनिंग? शाम को बच्चे कहाँ जाते हैं अपने पड़ोस के बच्चों के साथ में? इन द पार्क, ठीक है। खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं। व्हेन डू द चिल्ड्रन प्ले टुगेदर इन द पार्क? पार्क में कब जाते हैं वो खेलने के लिए? इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल? हमें फेस्टिवल कैसे मनाना चाहिए? अलोन और टुगेदर? द आंसर इज वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड वी गो पिकनिक अलोन? क्या हमें अकेले जाना चाहिए पिकनिक? नो, वी शुड नॉट गो अलोन, वी शुड गो विथ टुगेदर लाइक फ्रेंड्स, नेबर्स, एटसेट्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where do we buy goods? हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? From the market, बाजार से। What do we buy from the market? हम मार्केट से क्या क्या खरीदते हैं? Like fruits, vegetables, electronic items, stationery items, and there are so many चीजें we can buy from the market. Next question, how many shops are there in the market? Is one or many? There are so many markets. There are so many shops in the market. Where do we get our education? From school. हमें education कहाँ से मिलती है? School से। Who teach us good manners and good habits? Good teachers, good habits and good manners. Next question, where do we learn new things? हम नई चीजें कहाँ सीखते हैं? From the school. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द स्कूल? शिष्टाचार और अनुशासन कौन बना के रखता है? एवरीवन, लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, पियोन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन आवर स्कूल? हमारे स्कूल में कितने रूम्स होते हैं? देयर आर सो मेनी रूम्स लाइक क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी रूम, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड? वो कौन सी जगह है जहाँ पर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है? हॉस्पिटल। हु एग्जामाइन द पेशेंट? पेशेंट का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट? पेशेंट की देखभाल कौन करता है? नर्सेज। वेयर डू वी पोस्ट अवर लेटर्स? हमें लेटर्स को कहाँ पोस्ट करना चाहिए? पोस्ट ऑफिस। हु डिलीवर्स अवर लेटर्स? हमारे लेटर कौन पोस्ट करता है? हु पोस्ट नहीं, डिलीवर करता है? पोस्टमैन। What is the color of postman uniform? पोस्टमैन की जो यूनिफॉर्म होती है वो कौन से कलर की होती है? द आंसर इज खाकी। वेयर डू वी बाय लेटर्स, पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्स? ये हम सब कहाँ से परचेज करते हैं? स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड? फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। नेम अ प्लेस वेयर वी कीप अवर मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स टू सेव? द आंसर इज बैंक इज द प्लेस वेयर वी कीप अवर मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स टू कीप देम सेफ। Next question, what is the full form of ATM? Automatic Teller Machine. What is an ATM? ATM क्या है? ATM is an automatic machine
by which we can easily draw our deposited money at any time. ATM एक ऐसी मशीन है जहां से हम अपना पैसा कभी भी किसी भी वक्त निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर. Name a place where we can read many kinds of books. ऐसी जगह बताइए जहाँ पर हम कई तरह की बुक पढ़ सकते हैं. The answer is library. What do we take in the library? We take membership in the library. Next question. How should we stay in the library? हमें लाइब्रेरी में कैसे रहना चाहिए? We should keep silence. Why do people go to the library? लोग लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं? For reading books and time pass to get the knowledge from the different kinds of books. बुक पढ़ने के लिए जाते हैं और अपना टाइम पास करने के लिए भी जाते हैं और नॉलेज गेन करने के लिए भी लाइब्रेरी में जाते हैं. Should we quarrel with our neighbors? क्या हमें नेबर्स के साथ क्वेरल या लड़ाई झगड़ा करना चाहिए? No, never. How should we live together with our neighbors? हमें अपने नेबर्स के साथ कैसे रहना चाहिए? Peacefully, शांति से. Should we noise or listen to loud music at home? क्या हमें घर में तेज आवाज में गाना म्यूजिक सुनना चाहिए, तेज आवाज में बात करनी चाहिए? No, never. We should speak politely. Where do we draw money easily from? कहाँ से हम अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं? From the ATM. Now, the second topic, additional question is also completed in this chapter 5, amenities in neighborhood. So now your 5th chapter is completed, the first part and second part. Now you have to learn this video and you have to read this chapter 4 to 5 times every day. Thank you. Have a nice day.